Hello students, welcome to Dr. Holmes Academy. Dear students, in this lecture we will study about arithmetic mean from chapter 14th statics. In this lecture we will study about arithmetic mean. Arithmetic mean or average. ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰਾਜੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਸਾਡਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਜਾਂ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮਾਰਕਸ, number of students, marks 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. number of students 0 to 5, for example 3 students ਦੇ marks ਹੈ। 5 to 10 15 ਦੇ ਹੈ, 10 to 15 12 ਦੇ ਹੈ, 15 to 20 10 ਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਥਰਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ। ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਬਾਰ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਬਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਮ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਸਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਐਕਸ ਦੀ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮਿਸ਼ਨ fi xi upon summation fi xi upon summation fi। I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n. Is it clear? Second shortcut method ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ a assume ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। a stands for assumed mean। x ਦੀ ਬਾਰ is equal to a plus summation fi di upon summation fi। di stands for di ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ xi minus a। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। x ਦੀ ਬਾਰ is equal to a plus summation fi ui upon summation fi into c। ui stands for ui ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ di upon c। c stands for common divisor। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੇ।
डायरैक्ट मैथड दे विच मीन किस तरह फाइंड किया जाता है, एक्स दी बार इज इक्वल टू आई 1 तो लैके n तक, ये राइट करने की जरूरत नहीं है राजे, ये ना राइट करो, ये सिर्फ तुहानूं दस्सण लई राइट कीता सी। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, सैकेंड शॉर्टकट ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन, ए किहदे विचों अज्यूम किया जाऊगा, एक्स आई दे विचों राजे, ते डी आई की हुंदा राजे एक्स आई माइनस ए। स्टैप डेविएशन मैथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई एन टू सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिवाइजर। तो राजे असी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन असी तीनों मैथड के नाल सॉल्व करांगे। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज समीशन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ क्वेश्चन। Pocket money in rupees, pocket money in rupees 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। number of persons 8, 12, 10, 11, 9। तरह जे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट की है, पॉकेट मनी इन रुपीज 0 to 10 रुपीज, 10 to 20 रुपीज, 20 to 30 रुपीज, 30 to 40 रुपीज, 40 to 50 रुपीज। नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं, 8, 12, 10, 11, 9। 40 to 50 कितने पर्सन है, 9। 30 to 40 कितने है राजे, 11। 20 to 30 कितने है, 10। तो राजे असी इस क्वेश्चन का मेन तीनों मैथड्स दे नाल फाइंड करांगे ते तुहानूं डिफरेंस भी शो करांगे कि किसी भी मैथड नाल आंसर ते कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, चाहे तुसीं डायरैक्ट ना फाइंड करो, शॉर्टकट जां स्टैप डेविएशन नाल। तो राजे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ परसनस, यह तुहाडी की है फ्रीक्वेंसी, इनू की कहते हैं राजे एफ आई, इनू की कहते हैं एफ आई। डायरैक्ट मैथड दे विच राजे एक्स दी बार मीन किहदे इक्वल हुंदा है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। एफ आई तो आ गया, एफ आई स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ परसनस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मैन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये राजे नंबर ऑफ परसनस एफ आई हो गया। एक्स आई फाइंड करना है, एक्स आई की हुंदा है, इन्हां दियां मिड वैल्यूज़ का जिहड़ा कॉलम बनूगा उन्होंने एक्स आई कहते राजे। तो मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लो राजे, मिड वैल्यूज़ उन्होंने की कहते हैं एक्स आई। किस तरह, इन्हां नूं कहते राजे लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स की कहते हैं, लोअर लिमिट्स। तो इन्हां नूं की कहते राजे अपर लिमिट्स, की कहते हैं अपर लिमिट्स। इन्हों कहते हैं लोअर लिमिट्स, इन्हों की कहते हैं अपर लिमिट्स। तो मिड वैल्यूज किस तरह फाइंड किया जाता है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की राजे 0 to 10, तो मिड वैल्यू किस तरह 0 plus 10 by 2, आंसर इज 10 by 2, इट मीनस 5। फर्स्ट दी मिड वैल्यूज कितनी है, 5। सैकेंड दी 10 plus 20, 10 plus 20 by 2, 30 by 2, it means 15 and so on। Next 20 plus 30, 50 by 2, it means 25। 30 plus 40, 70 by 2, answer is 35। 40 plus 50, 90 by 2, answer is 45। Is it clear? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ एक्स आई, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ एफ आई। तो फस्ट उपर वाला पर न्यूमरेटर दे विच की है समीशन एफ आई एक्स आई, इट मीनस एफ आई ते एक्स आई दी प्रोडक्ट करो, जिहड़ा कॉलम बन गया उहदा की कर दो राजे सम समीशन। तो एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, 8 इंटू 5 आंसर इज 40, 12 इंटू 15 आंसर इज 180,
10 into 25 250, 11 into 35 answer is 385, 9 into 45 answer is 405। इस कॉलम का प्लस कर दो राजे की आ जाऊगा तो समीशन FI XI ऐड कर दो राजे कितना आ रहा है इज इट क्लियर। तेरा जे समीशन FI फाइंड कर दो FI का प्लस कर दो कितना आंसर आ रहा है 2050। इज इट क्लियर। तो एक्स की बार की होगा राजे समीशन FI XI उसकी वैल्यू पुट कर दो 1260 अपॉन 50 जीरो ना जीरो कैंसल 25.2 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਮੀ। ਇਹਦਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਓ x ਦੀ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲੱਸ ਸਮੀਸ਼ਨ FI DI अपॉन समीशन FI DI स्टैंड्स फॉर XI माइनस A। XI दे विचों एक A अज्यूम करना है किसी भी टर्म नू A अज्यूम कर सकते हो राजे किसी भी XI दे विच जिहड़ियां टर्म्स है 5 15 25 35 45 किसी एक नू A अज्यूम कर लो तो की फाइंड कर लो फस्ट ऑफ ऑल DI की फाइंड कर लो DI तुसी ए राजे 5 भी अज्यूम कर सकते हो 15 भी कर सकते हो 25 भी कर सकते हो 35 भी कर सकते हो 45 भी कर सकते हैं। तो मैं राजे ए अज्यूम कर लिया 25 नू ए इज इक्वल टू 25 DI फाइंड कर लिया राजे XI माइनस ए तो DI की होगा राजे 5 माइनस 25 माइनस 20 15 माइनस 25 आंसर इज माइनस 10 25 minus 25 answer is 0 35 minus 25 answer is 10 45 minus 25 answer is 20। is it clear। तो यह तो की है जी DI फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग FI DI इट मीनस FI की प्रोडक्ट करनी है जी DI नाल प्रोडक्ट कर दो FI DI is equal to 8 into minus 20 answer is minus 60 12 into minus 10 minus 120 10 into 0 answer is 0 11 into 10 answer is 110 9 into 20 answer is 180। समीशन FI DI फाइंड आउट करो राजे कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस आंसर इज माइनस 280 माइनस माइनस प्लस आंसर इज 290 माइनस 280 प्लस द 290 तो कितना आंसर आ गया जी 10। वैल्यूज पुट कर दो A स्टैंड्स फॉर A दी वैल्यू कितनी है राजे A इज इक्वल टू 25 प्लस समीशन FI DI 10 समीशन FI 50 आंसर इज 25 प्लस 1/5 25 1/5 means 0.2 it means 25.2। तरह जे डायरेक्ट मैथड दे नाल आंसर बिल्कुल तुहाडा मैच कर चुके हैं। तो नैक्सट की है जे साडा स्टैप डेविएशन मैथड। इज इट क्लीयर। तरह जी जे असीं शॉर्टकट मैथड की गल करिए तो XI वाला कॉलम तो सानू फाइंड आउट करना ही पैना है। तो XI का कॉलम फाइंड आउट करके ये एक वैल्यू अज्यूम करनी पैनी है A स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन किसी भी वैल्यू नूं तुसीं A अज्यूम कर सकते हो 5 नूं भी कर सकते हो 15 नूं भी 25 नूं भी 35 नूं भी ते 45 नूं भी। तो असीं 25 नूं A अज्यूम कर लिया उस तो बाद DI का कॉलम फाइंड आउट किया DI इज इक्वल टू XI माइनस A तो सारिया टर्म्स के विचों A माइनस करके उसनूं FI नाल प्रोडक्ट करता FI DI। तो समीशन FI DI फाइंड आउट किया फॉर्मूले च वैल्यूज पुट करतियां A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI तो राजे आंसर आ गया जरा 25.2।
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ 25.2 ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25.2 in our next lecture we will solve our questions with the help of step deviation method. Thank you. Bye dear students.